Good afternoon, beta. Good afternoon, everyone. चलिए, we are live now. And my dear students, today we are going to talk about your reading skills. आज हम रीडिंग स्किल्स की बात करेंगे और कल की क्लास में मैंने आपको बताया भी था स्टोरी पढ़नी और आज मैंने कॉल भी, हाँ बिल्कुल कॉल करने के लिए भी बोला था, लेकिन कॉल आज नहीं, कॉल कल करेंगे. कॉल का प्लान जरा सा पोस्टपोन है, ठीक है. कॉल आज नहीं, कॉल कल करेंगे बेटा, कॉल कल करेंगे. मैंने स्टाफ को बोला था एक नंबर लेके आना, ठीक है, क्योंकि मैं अपने नंबर से करता हूँ ना, फिर स्टूडेंट बार बार मेरे नंबर पे कॉल करता रहता है, ठीक है. फिर वो ये नहीं समझता सर क्लास में होंगे, ठीक है, उसको लगता है क्लास नहीं तो सर फ्री बैठे होंगे, उसको ये नहीं पता भाई साहब बहुत सारे काम ऑफिस के भी हैं हमारे, ठीक है बच्चे, खुद के. किसी के यहाँ काम तो नहीं करते बेटा, अपना ही ऑफिस, अपनी ही ऐप, अपने ही सारे काम हमें खुद ही संभालने पड़ते हैं, ठीक है. तो कल एक नंबर मंगाएंगे आपके पास, कल कॉल करेंगे, आज नहीं. चलिए आ जाए, आप सभी के सभी जुड़ जाए. देखो आज रीडिंग स्किल्स पे क्या बात करेंगे, स्पोकन की फाइल तो आपकी सेव ही है. रीडिंग स्किल्स पे एक इंटरेस्टिंग तरीके से बात करेंगे, जैसे कल जो मैंने आपको स्टोरी समझाई थी ना, ठीक है, ये रहा. कल जो स्टोरी समझाई थी ना मैंने, उसी स्टोरी टाइप में आज बात करेंगे. कल जो स्टोरी आपको समझाई थी उसी स्टोरी टाइप की आज बात करेंगे, कैसे आपको रीडिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव करनी है, ठीक है, किस तरीके से रीडिंग को स्पोकन से रिलेट करना है, उस बात को जरा समझिएगा. एंड आई एम गोइंग टू यूज मोर एंड मोर इंग्लिश, लेस एंड लेस इन द लैंग्वेज. द थिंग इज गाइस, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स, द फैक्ट इज we know sir how to read the English language. Basically we want to learn how to speak it. We are here for speaking purpose, not for reading purpose. So you have to convert the reading skills to your speaking skills. And how is that possible? How we are going to do it? Just try to read the paragraph and try to convey the message by using your own words. For example, you are going to read 3 to 4 lines, and after reading 3 to 4 lines you are going to summarize those lines by using your own words. And it's just like I told you in yesterday's class. You just read the story about that blind boy. You have the story in your mind, and I gave you some homework, guys. You have to record yourself, or you have to talk to yourself, or you have to tell the story to a child. You can say, if there is no availability for you, then you are enough for yourself. So start talking to yourself. It's just like I'm going to tell the story to myself. Got it? So the thing is, you will read 3 to 4 lines and try to summarize these 3 to 4 lines by using your own words. This is called how you can change your reading skills to your speaking skills. Got it? So here we go. We have talked about the PDF till here. So now we are going to talk about part number 4, and part number 4 is your reading skills. Part number 4 is your reading skills. Here is the paragraph. Here is the paragraph related to office, and you will read these lines and will try to convey the message by your own sentences. For an example, dear, when you work for a company, there are times बेटा, मतलब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं. टाइम्स के अलग अलग मतलब होते हैं. टाइम एक तो होता है, what is the time by your watch? क्या टाइम हो आपकी घड़ी में? एक टाइम क्या होता है? How many times have you been there? कितनी बार तुम वहां गए हो? I have been there 2 times. ये एक वाला होता है बेटा, उसकी एज उससे 2 times ज्यादा है. एक टाइम्स वो भी होता है, और एक टाइम्स होता है बेटा circumstances. If I talk about the modern times are different from the past. What do you mean by this statement? This statement means I am talking about the circumstances. I am talking about the modern circumstances are different from the past circumstances. Are you getting my point? अभी का समय, अभी का जो दौर, अभी की जो परिस्थितियां बेटा, वो पुरानी परिस्थितियों से क्या है, अलग है, भिन्न है. ये होता है मॉडर्न टाइम्स, ठीक है. तो टाइम्स जहां पर जो बात कर रहा है, तो टाइम्स क्या है, कह रहा है व्हेन यू वर्क फॉर अ कंपनी, जब आप एक कंपनी के लिए काम करते हो, देयर आर टाइम्स, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं व्हेन यू आर लेट और कैन नॉट मेक इट टू अ मीटिंग. जब आप किसी मीटिंग में लेट होते हैं या मीटिंग अप टू द मार्क नहीं कर पाते, मतलब जो आपको काम था, जो आपको सपोज कुछ फाइल तैयार करनी थी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना था, कुछ भी प्रिपेयर करना था मीटिंग के लिए, आप नहीं कर पाते. कई बार ऐसा होता है. तो समटाइम्स यू आर सिक, कई बार आप बीमार भी हो जाते हैं, और समटाइम्स यू आर स्टक इन ट्रैफिक, कई बार आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं. तो कई बार आप लेट हो जाते हैं, कई बार आप काम नहीं कर पाते मीटिंग के लिए, कई बार आप बीमार पड़ जाते हैं, कई बार आप स्टक इन ट्रैफिक, यू आर स्टक इन ट्रैफिक. हाँ, We will study sentences you need to know to say. आप आज हम वो sentences पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमें जानने की जरूरत है कहने के लिए. Why you are late or cannot make it to work? क्यों आप काम नहीं कर पाए और क्यों आप लेट हैं? तो ऐसे sentences हमने पढ़ने हैं, इस टाइप से रिलेटेड sentences. लेकिन बेटा अब आपने क्या करना है, इसकी एक स्पीच तैयार करो. इन्हीं लाइन जो अभी आपने बोली, उनकी एक स्पीच तैयार करके आपको ऐसा करना है जैसे कि मुझे बोल रहे हो आप. ऐसा करना है जैसे कि आप मुझे बोल रहे हो, ऐसे खड़े होके, है ना. जैसे आज मैं आया और मैंने बोला, जैसे सपोज करो मैं यहां से आ रहा हूं, ठीक है, मैं आया, मैं बोला hello everyone, good afternoon dear, and today we are going to have an interesting session actually. Today we will talk about the sentences that can be used when you are late in your office. Of course guys, when you start working for a company, it is impossible for a human being to be on time every day. Of course you are going to be late sometime for meeting. Of course if you have some work to do, but you can't make it on time just because of your busy schedule or just because of your personal life. You can't make it on time. That means I'm talking about your office work. So sometimes you are late for the meeting, sometimes you are not able to complete the work on time. Your official work, I'm not talking about your personal work. Sometimes you are stuck in traffic, and just because of that traffic you reach your office late, and sometimes you are sick. So there can be so many circumstances that can be the reason why you are late. So here are some sentences that can be used when you are late for a meeting or when you are late in your office. So today we are going to talk about these sentences. This is the way how you can convert a conversation into your words.
So that was the paragraph, and guys, I just changed the paragraph according to my words. So this is how you are going to read for your spoken purpose. This is called the actual reading skills for spoken purpose. Sometimes if I say you should read novels and all for your spoken purpose, you always think we are going to read the novel and we will find out the story. No, dear. We are not here to find out the story that is given in the novel. No, we are here for your spoken purpose. So read the lines and try to speak the same lines but by using your own words. करेक्ट बेटा, सेम लाइनों को पढ़ो और अपने शब्दों में चेंज करो. बेटा मैंने अभी बोला कल करेंगे, कॉल वाला जो प्रोग्राम है वो आज नहीं कल सेट करेंगे. आप लेट आए हो, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला जो कॉल वाला कॉल करेंगे फोन पे वो कल करेंगे. ठीक है, स्टोरी वाली चीजें. तो अभी आपने इस लाइन को ऐसे बोल दिया. बेटा ये होता है स्पोकन पर्पस. ये कुछ नहीं, इसको आपने पढ़ लिया, बोला हाँ पढ़ लिया सर मेरे को समझ आ गया, अब मैं आगे बढ़ जाऊं. बेटा एक बात बताओ, पढ़ने से आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी इंग्लिश की. अरे मेरे बच्चे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के रीडिंग स्किल्स बढ़ा के स्पीकिंग थोड़ी ना आ जाएगी. तो हर चीज को बेटा घुमा के स्पीकिंग से रिलेट करो. यू हैव टू रिलेट ईच एंड एवरीथिंग टू द स्पीकिंग. बोलने से आपको हर चीज को रिलेट करना है. ठीक है, चलो अगली लाइन पढ़ते हैं, आगे सुनिएगा. सम जॉब्स रिक्वायर यू टू पंच इन व्हेन यू गेट टू वर्क. बेटा कई जॉब्स ऐसी होती हैं जब आपको पंचिंग करनी होती है ना, जब आप आते हैं पंचिंग इन हाँ करनी पड़ती है. इन कीप्स ट्रैक ऑफ हाउ लॉन्ग यू वर्क. जो पंचिंग इन होती है बेटा वो पता था, जैसे आपने 9 बजे ठीक है आप आए, 3 बजे आप जा रहे हैं, 6 घंटे आपने काम किया, तो वो काम का आपका ट्रैक रखती है पंचिंग. ठीक है, मशीन लगा दी जाती है पंचिंग मशीन में सारी डिटेल आ जाती है, कब तक आप कब आप आए थे, कब आप जा रहे हो, कितना आपने काम किया. ठीक है, देखो इतनी सी लाइन को मैंने हिंदी में भी तो बोला अपने शब्दों में. इफ आई एम रीडिंग दिस सेशन या इफ आई एम रीडिंग दीज लाइन्स एंड आई एम ट्राइंग टू ट्रांसलेट दीज लाइन्स इनटू द हिंदी लैंग्वेज, आपको ऐसे ही वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने. आगे सुनिए. मेनी आर्ली जॉब्स, जो बहुत सारी जॉब्स होती हैं जो घंटों की होती हैं, यूज दिस सिस्टम. बहुत सारी जो आर्ली जॉब्स होती है ना बेटा, पर आवर पे होता है या आवर के हिसाब से आपको देखा जाता है आपकी सैलरी. अगर 8 घंटे की पर डे ड्यूटी और आप 6 घंटे करें 2 घंटे की सैलरी काट ली जाती है. तो ऐसी जॉब्स क्या होती हैं, यूज करती हैं इस पंचिंग सिस्टम को. आगे कहते हैं बट इफ यू आर अ सैलरी पर्सन, अगर आप एक सैलरी पर्सन है, हाँ डू नॉट हैव टू पंच इन, फिर तो आप पंच इन की जरूरत नहीं, आपकी सैलरी तो फिक्स है. देन यू हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी, फिर तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है. कभी कभार आप लेट आते हैं तो बेटा कभी कभार आप लेट तक काम भी करते हो. अब आपके बॉस ने बोला यार तू तो लेट आता है, उसने बोला कोई बात नहीं बॉस, अगर मैं आज 1 घंटा लेट हुआ हूं तो कल 3 घंटे एक्स्ट्रा काम भी तो किया था, वो कहां है मेरा. सो क्या होता है, यू हैव गॉट सम फिक्स्ड वर्क दैट यू हैव टू कंप्लीट इन अ मंथ एंड यू आर ऑन अ फिक्स सैलरी. आप एक फिक्स सैलरी पे 1 महीने में उतना काम करते हैं, आपको सैलरी मिल जाती है. तो 1 घंटा लेट आए तो क्या हुआ, कभी कभार आप लेट तक काम भी तो करते हो, तो आपका चल जाता है. ऐसे में पंचिंग मशीन नहीं चाहिए होती, मतलब पंचिंग सिस्टम नहीं चाहिए होता. लेट्स से यू आर गोइंग टू बी 5 मिनट लेट, चलो 5 मिनट लेट हो. इफ यू हैव योर ओन ऑफिस, अगर आपका अपना ऑफिस है तो नोबडी विल नो, फिर तो कोई नहीं जानेगा, को मतलब नहीं, फिर तो कभी भी. बट इफ यू वर्क इन अ सेटिंग हाँ वेयर योर बॉस सीज यू कमिंग इन, अगर तुम ऐसी जगह काम करो जहां तुम्हारा बॉस तुम्हें आते हुए देख रहा है, देन यू विल नीड एन एक्सक्यूज. फिर तो तुम्हें एक बहाना चाहिए होगा भाई, ये तो तुम कह नहीं सकते बॉस देख रहे हो कह रहे बॉस क्या रहा है, कहता लेट आ रहा बॉस है. यू कैन नॉट बी ऑनेस्ट इन दैट पर्टिकुलर केस, यू नीड सम एक्सक्यूज. आप ये तो नहीं कह रहे. एक बात बताओ, आप कान लगा के बॉस के बाहर ऑफिस में यू सुन रहे और एकदम से बॉस बाहर आ गया, कहता क्या कर रहे हो, सब बातें सुन रहा था सर, बातें सुन रहे थे. अरे यार तुम तो बड़े ऑनेस्ट हो, थैंक यू सर. ऐसा नौकरी से निकाल देगा पागल, तुमको नहीं. अरे सर बस ऐसे आता सर, ऐसे खड़ा, ऐसे बोल रहे बेटा, मतलब आप सच नहीं बोल सकते ना. दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, ऐसे ही दुनिया काम करती है बेटा, मतलब आप सच नहीं बोल सकते. अब मैं कैसे तुम्हें सच बोलूं, मैंने तो सच बोला था डेमो में. मैंने क्या कहा था, कौन कौन बच्चा स्पीकिंग सीख पाएगा. बेटा मैंने ये कहा था बच्चा वो स्पीकिंग सीख पाएगा जो टाइम टू टाइम होमवर्क करेगा, जिसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होगा. जिसका पर्सनल इंटरेस्ट होगा वो थोड़ा स्पीकिंग सीख पाएगा. ये तो मैंने आते ही बोल दिया था कल की क्लास में आपको, मतलब डेमो क्लास में. अब आप में से जितने सारे स्टूडेंट टिके हुए हैं, जितने सारे स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, 80% बच्चा टिका हुआ, लेकिन 20% तो हार मान गया. उनको तो लगता है हम स्पीकिंग सीख नहीं पाएंगे. मान गया ना हार, तो अपनी जिंदगी से समझौता. जिंदगी से समझौता मतलब नौकरी से समझौता. नौकरी से समझौता मतलब मेरे बच्चे अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन है, वो खुश है बस उसमें घूम के. आपको गाड़ी चाहिए जिंदगी में तो मेहनत कर, अब कुत्तों की तरह मेहनत कर लोगे, बाद में इंसानों की तरह जियोगे. अब इंसानों की तरह जी लियो सर, मेहनत नहीं करनी, ज्यादा नहीं पढ़ना, तो बाद में फिर कुत्तों वाली जिंदगी होनी बेटा. अब 1 साल की स्ट्रगल, सारी लाइफ चैन. अब 1 साल चैन, सारी लाइफ स्ट्रगल. आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस. चलो वी विल कवर एवरीथिंग अबाउट बीइंग लेट हियर. तो हम लोग कवर करेंगे यहां सब कुछ जब आप लेट होते हो. तो इस पैराग्राफ में बेटा क्या करें, 5 मिनट लेट अगर आप हैं तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, ये बात की बात है. तो इस पैराग्राफ में क्या बात की, इस पैराग्राफ में ये बात की, समअप करूं, हिंदी में समअप करता हूं और आपको मैं पहले सेंटेंसेस बनाने का मौका देता हूं. पहले हिंदी में समअप करता हूं और आपको मैं सेंटेंसेस बनाने का मौका देता हूं. ठीक है भाई, एक काम करता हूं, मैं इसे हिंदी में पहले समअप कर रहा हूं. हिंदी में ये समअप है बेटा इसका कि उन्होंने कहा कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं बेटा जो पंचिंग जिनमें सिस्टम होता है, क्योंकि वो जॉब आवरली बेस होती है. और आवरली बेस जॉब्स में ये करना होता है कि आप कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, कितनी देर आपने काम किया एक दिन में, सारा रिकॉर्ड आपको चेक किया जाता है, ताकि मंथ एंड पर जितने, जैसे सपोज 8 घंटे आपको दिन में काम करना था, इतने दिन वर्किंग डेज थे एक महीने में, उसके हिसाब से इतने आवर्स बने, तो अगर आप लेट आते थे तो आपकी सैलरी काट दी जाएगी. तो वहां इन चीजों का ध्यान रखा जाता है. जहां आवरली जॉब्स में काम कर रहे होते हो वहां पंचिंग सिस्टम यूज किया जाता है. लेकिन जब आप एक सैलरी अगर पर्सन है, आपकी सैलरी फिक्स है, कभी कभार आप लेट भी आते हो तो 2 देर तक काम भी कर लेते हो, फिक्स सैलरी पे आप एक काम कर रहे हैं, तो वहां इतना थोड़ा ध्यान नहीं रखा जाता. आप लेट आ रहे हैं, चलो थोड़ा बहुत चल भी जाता है आपका, वहां लेट आना इतना ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि वहां फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है. आपकी सैलरी फिक्स है, आप काम भी फिक्स कर लेते हो. चलो फिर हमने क्या बोला, अगर कभी कभार 5 मिनट लेट हो जाते हैं और आपका अपना ऑफिस है तो भी कोई टेंशन नहीं, फिर तो आपको कोई बहाने की जरूरत नहीं है या कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है लेट हो क्यों हो. ठीक है वो चीज. लेकिन बेटा अगर आप एक ऐसी जगह काम करते हैं जहां बॉस का कैबिन ऐसे लगाओ, जैसे बॉस का कैबिन ऐसा जगह है जहां से आते जाते वो सबको देखता है, आप कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, तो वहां ऐसे में बॉस आपसे आपका रीजन पूछेगा, भाई लेट हो तो लेट क्यों हो,
ठीक है, वहां आपको इस सिस्टम की जरूरत पड़ जाती है। तो कैसे आप अपने आप को इंग्लिश में सेंटेंसेस यूज करेंगे अगर लेट होते हैं, आज हम उन सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जो मैंने हिंदी में बोला अब आप उसको इंग्लिश में समझ कीजिए। पॉइंट याद है ना आपको? याद होगा ना? कई जो वैसे पंचिंग सिस्टम यूज करती है, कई सैलरी वाली होती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसी जगह काम करते हो जहां बॉस आते जाते देखते हैं, तो वहां आपको बहाने चाहिए होंगे, सेंटेंसेस चाहिए होंगे, उन सेंटेंसेस के बारे में पढ़ें। जब टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है, 3 मिनट 4 मिनट का समय, आराम से इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को समझ कीजिए। और मैं इधर कर देता हूं बेटा ब्लैंक, मैं इधर कर देता हूं ये ब्लैंक। ब्लैंक क्या, इसको मैं ब्लैंक कर देता हूं ताकि तुम चीटिंग ना कर पाओ ताकि तुम चीटिंग ना कर पाओ। ठीक है, ये हो गया जी आपका ब्लैंक, ये हो गया आपका ब्लैंक। अब आप यूज कीजिए और इसको समअप करके बताइए। आपके पास 4 मिनट का समय, कमेंट करें बेटा। बेटा फोन कॉल कल करेंगे बताया तो भी, लेट लतीफ, समअप करो। तो भाई आराम से अपना अपना सेंटेंस बनाइए आप। बेटा सेम वर्ड्स एक दो स्टूडेंट यूज कर रहा है, बिल्कुल सेम सेंटेंस लिख दे रहा है, सेम सेंटेंस ना यूज करो वरना मजा नहीं है। ठीक है डियर, देखिए आप देखो कैसे आपने ट्रांसलेट करना था। खोले फाइल अपनी। सिस्टम ये है डियर कि आपने ये लाइन पढ़ी, आ गया भाई, मिल गया। ये आपने पढ़ा सम जॉब्स, मैंने बोला ना देयर आर सम जॉब्स। अब मैं कन्वर्ट करके आपको बताता हूं, आप उसको देखिएगा। देयर आर सम जॉब्स that need punching system. According to the punching system, when we enter the office we have to punch in, and when we leave the office again we have to punch in. So our entering time, you can say, and our exit time will be recorded by a machine, so that our working hours can be calculated at the end of the month. And these working hours will help us to calculate the exact salary, because this is the system of hourly based jobs, where you are paid according to your working hours. But if you are working on a fixed salary basis, then there is no requirement of punching system. So this is the reason, if in your salary based system, if you come 5 minutes late, it doesn't matter, it hardly matters. So you can be late in that particular situation sometimes. But if you are working in office where your boss cabin is just near the gate, or is just near the entry, when you come, the boss can see you. In that case, if your boss asks you, why are you late, you cannot say I am late just because I'm late. You cannot say मैं late हूं क्योंकि मैं late हूं. You cannot say I'm late because I'm late. You cannot say. You need some excuse there. You have to tell him whether you were in traffic, you were sick, you woke up late. You have to tell him some excuse. You cannot be honest in that case particularly, because you are late just because of your lazy behavior. You cannot say because I'm lazy I'm late. You cannot say. So here are the sentences that can be used when you come late in your office. So you can use these particular sentences. सो बेटा ऐसे आप बोल सकते हो। जो मैंने हिंदी में बोला उसी को मैंने आपको इंग्लिश में करके बता दिया, ठीक है ना। जो भी मैंने, एक सेकंड रुकेगा, कमेंट आपके रिफ्रेश करूं मैं। तो जो मैंने डियर आपको हिंदी में बोला उसी को मैंने आपको इंग्लिश में रिपीट करके बता दिया। बोलो जी हाँ, चीजें समझ आए कि नहीं? एक सेकंड, कमेंट।
अब ठीक है डियर, हाँ ठीक है ना, अब आ रही क्लियर हो गया नहीं, ठीक है अब चल रही है। ठीक है, तो ये सेंस है कि कुछ जॉब्स को ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसा यूज करेंगे, ऐसी रिक्वायरमेंट है तो ऐसा यूज करेंगे, ये सेंटेंस बोलो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। देखो अगर आप 5 मिनट लेट है, अच्छा आपको ये लग रहा है यार 5 मिनट लेट हो गया तो कौन सी बड़ी बात होगी, बेटा 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 व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम सीरियस मीटिंग, आप बात कर रहे हो ना किसी सीरियस मीटिंग की, सो 5 मिनट्स इज अ बिग डिफरेंस। आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना होगा व्हाई यू आर लेट। बेटा वहां ये नहीं है बोर्ड की मीटिंग है और आप 5 मिनट लेट जा रहे हैं, इम्पॉसिबल है बेटा, इम्पॉसिबल। तो वहां 5 मिनट्स नहीं होती, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते। सो अब जरा देखो, इफ यू आर गोइंग टू बी जस्ट अ लिटिल लेट, अगर आप थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, देन यू डू नॉट नीड टू कॉल इन। ठीक है, फिर तो आपको कुछ कॉल वॉल करके बताने की जरूरत नहीं कि मैं लेट हूं या कुछ करने की जरूरत नहीं। हाउएवर यू विल नीड टू टेल देम व्हाई यू आर लेट, अदरवाइज तो आपको बताना पड़ेगा क्यों लेट। व्हेन यू गेट इन ऑफिस, हियर आर सम एग्जांपल, जैसे सॉरी आई एम लेट, ट्रैफिक वाज अनयूजुअली बैड टुडे, आई वॉज इन ट्रैफिक, ट्रैफिक वॉज अनयूजली बैड। कई बार होता है ना बेटा, जो सेम ट्रैफिक जो मिलता है आप उस अंदाजे से निकले, डेली आपको ऑफिस पहुंचने में 45 मिनट्स लगती है, तो आप घर से 5-7 मिनट और पहले निकल लेते हो, मतलब आप मानते हो चलो भाई 45 मिनट्स की एवरेज है, तो मैं घर से मैक्सिमम 1 घंटा पहले निकल लेते हो, ठीक है कि भाई आराम से पहुंचो। लेकिन उस दिन ट्रैफिक अनयूजुअल मिल गया, तो आप 1 घंटे में भी नहीं पहुंच पाए, आप 1 घंटे 10 मिनट में पहुंचे, तो फिर तो आप ऑफिस के लिए लेट हो गए। तो आप कह सकते हैं, फिर तो आप ये बोलोगे सॉरी आई एम लेट, एक्चुअली द ट्रैफिक वाज अनयूजुअली बैड, द ट्रैफिक वाज अनयूजुअली बैड टुडे। इसका मतलब होता है बेटा अनयूजुअली का मतलब यूजुअली ऐसा इतना ट्रैफिक नहीं होता, इतना ट्रैफिक होता है मैं नहीं कह रहा, लेकिन अनयूजुअली बैड ट्रैफिक हो गया आज, सो द ट्रैफिक वाज अनयूजुअली बैड। ठीक है, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, मैं माफी मांगता हूं लेट होने के लिए। आई हैड टू ड्रॉप ऑफ माय वाइफ एट वर्क, एक्चुअली मुझे मेरी पत्नी को काम पे छोड़ने, ठीक है, जाना पड़ गया था, मतलब आप डेली नहीं जाते, जाना पड़ गया तो क्या हुआ, उसने बोला मेरे भी काम है, तो कई बार होता नहीं आप उनको ड्रॉप करके फिर ऑफिस गए हो, ठीक है, फ्रेंड को एक अर्जेंट काम था उसको ड्रॉप करके गए, इट टुक लॉन्गर देन आई थॉट, या एक और बात बोल सकते हो, इट टुक लॉन्गर देन आई थॉट, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा टाइम लग गया आने में। तो आप सोचते यार 14 किलोमीटर जाना है, इतने में पहुंच जाऊंगा, बट उससे ज्यादा, तो इट टुक लॉन्गर देन आई थॉट। कितने स्टेटमेंट हो गए देखो बेटा, एक तो ये बोल दो सॉरी आई एम लेट, ट्रैफिक वाज अनयूजुअली बैड, तो आपके पास एक स्टेटमेंट हो गई, एक स्टेटमेंट हो गई, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, दूसरी हो गई आई हैड टू ड्रॉप ऑफ माई वाइफ एट वर्क, ठीक है, तीसरी ये अब पूरी बेटा, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, आई हैड टू ड्रॉप ऑफ माई वाइफ एट वर्क, और चौथी हो गई बेटा actually it took longer than I thought, I'm really sorry I'm late। so बेटा बात डिपेंड करता है, सॉरी फॉर बीइंग लेट, सॉरी फॉर बीइंग लेट, कई बार आप छोटे से में टाल देते हो, अगर दोस्ती यारी में बोलना हो सॉरी फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए आपने सॉरी बोल दिया, आपने बड़े छोटे में उसे टाल दिया, सॉरी फॉर बीइंग लेट, ठीक है, सॉरी फॉर बीइंग लेट, लेकिन आपने क्या टाल दिया, छोटे में टाल दिया, छोटे छोटे में टाल दिया आपने। लेकिन आप छोटे में कब टाल पाएंगे बेटा, छोटे में आप तब टाल पाएंगे जब बात उतनी बड़ी ना हो, बड़ी हो तो आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट। और बड़ी बात हो ना बेटा, ऑफिस में कॉल करके बताया जाता है आई एम गोइंग टू बी लेट, एक्चुअली आई एम इन ट्रैफिक टुडे, द ट्रैफिक इज अनयूजुअली बैड, टुडे द ट्रैफिक इज अनयूजुअली बैड, तो ट्रैफिक है तो मैं आई एम ऑन माई वे, सो प्लीज टेल देम आई एम गोइंग टू बी लेट, आई एम रियली सॉरी, इट इज टेकिंग मी लॉन्गर देन आई थॉट, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब बातों को, अब इस पूरी की पूरी प्रोफाइल को बेटा आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलना है। मैं समझ करूं हिंदी में, फिर आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। इफ यू आर गोइंग टू बी जस्ट अ लिटिल लेट, अगर आप थोड़ा सा लेट होने वाले हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉल वॉल करके किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आपकी और आप ऑफिस में लेट पहुंच रहे हैं, तो सबसे पहले इंसानियत के नाते भी बेटा आपको सबसे पहले कॉल करनी चाहिए, बताना चाहिए कि मैं लेट हूं, प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि दूसरा इंसान भी थोड़ा शांत हो जाता है, चलो कोई नहीं ट्रैफिक मिल गया होगा, है ना, तो वो शांत हो जाता है, ठीक है। कोई भी आप बात बोल सकते हैं। फिर भी अगर आप लेट हो जाते हैं ऑफिस के लिए, तो आपको क्या, अगर छोटी मोटी बात है तो सॉरी आई एम लेट बोल दो, ठीक है, थोड़ी छोटी मोटी है आप सॉरी फॉर बीइंग लेट बोल दो, ठीक है। या लेकिन अगर कोई बड़ी बात है तो बेटा आपको लेट होने का कारण भी बताना चाहिए, आपने बोला सॉरी फॉर बीइंग लेट, एक्चुअली द ट्रैफिक वाज अनयूजुअली बैड टुडे, ठीक है। और बड़ी बात हो तो बेटा आप अपोलोजाइज शब्द का यूज करते हैं, सॉरी वॉरी भाड़ में गया, ये शब्द कई बार इरिटेटिंग लगता है, कोई भी गलती करके सॉरी बोलता है ऐसा लगता है सॉरी नहीं बोल रहा, गाली दे रहा है, आपको पता ही बात, आई एम सॉरी आई अपोलोजाइज, ये बहुत बड़ी बात है बेटा, सॉरी और अपोलोजाइज में फर्क होता है, मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं, आई एम सॉरी और आई अपोलोजाइज, ठीक है। फॉर बीइंग लेट आप ये बोलो बेटा, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, क्या सॉरी फॉर बीइंग लेट की बजाय आप ये शब्द बोलते हो, थोड़ा वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। फिर आई हैड टू ड्रॉप ऑफ माई वाइफ एट वर्क, आप कोई भी जो कारण रहा आपका लेट होने का बना सकते हैं, या कई बार इंसान बहाना भी बना देता है कि नहीं, इट टुक लॉन्गर देन आई थॉट, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा समय लेके। अब इस पूरी बात को जो मैंने बोला, जैसे भी एक्सप्रेशन में बोला बेटा, आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए, फिर मैं तो बोलूंगा ही, मैं तो बताऊंगा ही आपको, ठीक है। चलिए फिर से 3-4 मिनट का आपके पास समय है, आप आराम से इस इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो बेटा। सेंटेंस बन रहे पर लेट बन बेटा, लेट बने पहले बने, आपको क्या बनाओ उसको, कोई टेंशन नहीं।
ठीक है, चलो बेटा, कहते अब सर कहाँ चले गए? सर नहीं चले गए, सेंटेंस पे ध्यान देते थे, सर कहाँ चले? सेंटेंस मत बनाइयो तुम, सर को ढूंढ ले तुम, सेंटेंस मत बनाइयो। बनाई दिया। देखो आप क्या करोगे, आप कैसे बोलोगे इसको? इसको नॉर्मल मैं एक आपको सपोज करो एक लेक्चर टाइप दे रहा हूं, मैं आपको क्या बोलूंगा, लुक डियर, इफ दैट इज सो इंपॉर्टेंट टू बी इन योर ऑफिस ऑन टाइम बट यू आर लेट. For an example, you have some important meeting and you have to be on time in office, but you are late. So while driving, you should call in your office and tell them you are going to be late, and tell your staff that they will they will apologize that you are late, and tell them you are in traffic. It is taking you longer than expected because it usually takes you 50 minutes to be in your office from your home, but today it is taking longer than the usual time. So this is the first case. But if you are late in your office and your boss is there, or your staff or your meeting people are there, then you should feel sorry and you should say sorry. For little bit late, you can say sorry for being late, let's start the meeting, sorry I'm late, let's start the meeting. Or you can say I'm really sorry, that's it. But if the important meeting was there, some important task or some important work was there, then you should use verb apologize. I apologize for being late. Actually, I had stuck in traffic. Oh, I was stuck in traffic. Or you can say I had some urgent work, or my friend was ill, I had to go there, so that's why I'm late. So you should tell them the reason of being late. This is the second case. But in case your friend circle, in case you are talking about your friend circle, you are late, your friends planned for movie and you are late, then you can use sorry bro, I'm late, sorry, traffic was there, sorry I'm late. So you can avoid the reason by just saying sorry. But guys, in the serious case, use this verb. In the serious case, use this verb. I apologize. Got it? I apologize. Or you can say it took me longer than I expected. I expected I should be there in 30 minutes, but it took me 45 minutes to be there. Just like this. इतना ही तो बोलना है. इनडायरेक्ट जो मैं कह रहा हूं वो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं डियर. जो भी मन में आए, जो भी दिमाग में आए, बोलते चले जाओ. हल्का महसूस करो. बकायदा ये सोचने के क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कितना बोलूं, ठीक है, किसको बोलूं, ये सब सोचने की बजाय आप सिंपल एक छोटी सी बात ये बोल के चलो. मतलब जो मन में आएगा, whatever comes into my mind, I am going to speak, you will feel free. It's just like you are in the airs. There is no requirement to think whatever I am going to speak, that is correct or not, that is grammatically correct or not. There is no requirement here. If it comes into your mind, just try to speak. Or in a slow speed. There is no requirement to maintain the speed at your initial stage. Once you perfect yourself, you practice at that level, then try to maintain the speed. देखो मैंने कर दी ना, अभी स्लो बोल रहा हूं ना मैं, स्लो बोल दो. But once you practice a lot, then there is no requirement to maintain the speed, because normally you are going to maintain your speed. देखो अब मैंने तेज बोल दी, बट आप उसको तब खेल पाओगे जब आप एक बार आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीखो. जो भी मन में आए, चिल करो, आराम से उसे बोलते चलो. आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं. बताइए अब कोई टेंशन? पक्का? चलो अब अगली स्लाइड देखिए, एक स्लाइड और देखते हैं. I had a dentist appointment this morning and it was longer than I expected. अच्छा देखो, लेट क्यों हुआ? आपके पास एक डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी और आपको लग रहा आधे घंटे में वहां से फ्री हो जाऊंगा, लेकिन मैं हो नहीं पाया, तो यार मैं लेट हो गया. समझे? So I had a dentist appointment this morning and it was longer than I expected. जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा वो ठीक है चल गई, इस वजह से मैं लेट हो गया. I'm sorry for being late. I got stuck in every light this morning. अच्छा ये भी होता है, कहता है यार आज तो मैं चला रहा था गाड़ी, हर लाइट मुझे रेड लाइट मिली. ऐसा भी होता है कि भाई टाइम भी ज्यादा लग गया, जैसे गया रेड लाइट, कोई लाइट आज ग्रीन ही नहीं मिली. सो आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट. आई गॉट स्टक इन एवरी लाइट. ठीक है, दिस मॉर्निंग. नेक्स्ट, इफ यू आर द बॉस, अगर तुम बॉस हो, देन यू माइट वांट टू आस्क व्हाई योर एम्प्लॉय इज लेट. लेट्स सी सम ऑफ दीस सेंटेंसेस. अब क्या है बेटा कि अगर आप बॉस हो, अगर आप चाहते हो कि क्यों आपका स्टाफ या क्यों आपका एम्प्लॉय लेट है, और आप उसे वो क्वेश्चन पूछना चाहते हो, व्हाई आर यू लेट, सो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हो, व्हाई आर यू लेट. रनिंग लेट दिस मॉर्निंग. लेट आ रहे हो, रनिंग, यू आर रनिंग लेट, या रनिंग लेट दिस मॉर्निंग. शॉर्ट में बोल देते बेटा. What held you up this morning? What held you, किस चीज ने रोक लिया था भाई तेरे को आज? What held you up this morning? ये तो आप खैर बहुत रेयर यूज करते हो ऐसे. अच्छा दोस्त लेट आ रहे हैं तो आप ले दो रनिंग लेट दिस मॉर्निंग. Why? You are late this morning. Why? You are late. Why? ऐसे बोल दो. Why are you late? ठीक है. This is the time you are coming. ये समय तो आ रहा है. ऐसा भी बोल सकते. नेक्स्ट देखो. Do you have a reason for being late? ऐसा दोस्त को भी बोल सकते हो और बॉस आपको भी बोल सकता है. Do you have a reason for being late? कोई कारण है भाई लेट आने का? मतलब ये होता है बेटा थोड़ा सा गुस्सा. Do you have a reason for being late?
कारण है कोई लेट आने का, तो वो थोड़ा गुस्सा है और वो आपसे सीरियसली पूछना चाह रहा है कि आप अगर सीरियसली लेट हैं तो भाई साहब ढंग से बताएं आप आखिरकार लेट है क्यों, ढंग से बताएं आखिरकार आप लेट है क्यों। सो ये कहने की कोशिश कर रहा है बेटा डू यू हैव अ रीजन फॉर बीइंग लेट। चलो फिर है व्हाई आर यू लेट, सिंपल बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो बेटा अ बॉस और मैनेजर विल नॉट टू अपसेट इफ यू आर लेट ओनली वंस और वेरी रेयरली। देखो बेटा बॉस को या मैनेजर को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है आप लेट है, अगर आप कभी कभार लेट है ना, वेरी रेयरली लेट। इफ दिस इज अ कांस्टेंट हैबिट, अगर आपने हैबिट बना ली है तो दिस माइट बी अ लिटिल मोर अपसेट, तो या माइट बी अ प्रॉब्लम है ना। यू हैव बीन लेट 3 टाइम्स, भाई तू 3 बार लेट हो चुका है इन द लास्ट 2 वीक्स। हाँ इन दिस इज दिस गोइंग टू बी अ कॉन्टिन्यूअल प्रॉब्लम, क्या भाई साहब ये ऐसे ही चलेगा क्या, आप ये बोल सकते हैं। और आप ये बोल सकते हैं यू आर ऑलवेज कमिंग लेट एंड वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर। तू ठीक है लेट आ रहा है भाई साहब, तू हमेशा लेट आ रहा है, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनीमोर, और अब हम इसे और बर्दाश्त नहीं करने वाले। दिस इज द वे यू कैन यूज, ये भी है जो रास्ता आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है अगर ऐसे ही चलेगा तो हम ये करें, तो अब इसको वाइंड अप करो। एक तो ये बोल दिया, ठीक है ये बोल दिया, और मैंने ये बोला, अब दोनों को देखो, आपने बोला भाई मेरी अपॉइंटमेंट थी, आई हैड अ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट दिस मॉर्निंग, और वो लंबी चल गई, ये चीजें आप इसको वाइंड अप कर लोगे। ठीक है बॉस हो तो फिर चल जाएगा बेटा, चलो कोई नहीं आप है, ठीक है, या सेंटेंसेस आप ये यूज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं बेटा आपको सेंटेंसेस याद करनी, आपको सिंपल इसको सम अप करना है। सर एक्चुअली आई एम लेट बिकॉज आई हैड अ डेंटिस्ट प्रॉब्लम, आई हैड टूथिक, सो आई हैड अ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट एंड इट took longer than I expected, so sorry, that is the reason I'm late. It is not going to happen again, ये दोबारा नहीं होने वाला, ऐसा बोल सकते। I'm sorry for being late, actually आपने क्या बोल दिया, लाइट वाला, I got stuck in every light today actually, छोटा मोटा बोल दिया। But if you're boss of the company and you want to know the reason why your employee is late, then you can use why are you late, you are running so late, you are running late, why, ठीक है ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये सेंटेंस आपने बोल दिया बेटा। फिर डू यू हैव अ रीजन फॉर बीइंग लेट, क्या कारण है लेट होने का, व्हाई आर यू लेट, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है यू आर कमिंग लेट, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट एंड वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनीमोर, तो हमेशा लेट आ रहा है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करने वाले, आप ऐसा भी डांट फटकार भी लगा सकते हो। सो ये है बेसिकली, ठीक है तो ये है बेसिकली। तो ओवरऑल बेटा अगर देखें तो आज की क्लास का निचोड़ क्या है, आज की क्लास का निचोड़ जो मैंने कहा ना, आपकी रीडिंग स्किल्स डेवलप करना था इस पीडीएफ से, ठीक है आपकी रीडिंग स्किल्स डेवलप करना था। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक पीडीएफ मैंने रेडी किया, आप पे उस पर चर्चा करेंगे। तो रीडिंग स्किल से क्या सीखा, रीडिंग स्किल से आपने एक सेम सिंपल सी चीज ये सीखी है कि रीडिंग स्किल्स का मतलब है कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपल तरीके से सेंटेंसेस पढ़ेंगे और उनको अपने वर्ड्स में बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है चलिए बेटा तो मस्ती करो, ठीक है थोड़ा जल्दी छुप रहे हो आप, मस्ती करो। और आज का होमवर्क सुन लो बड़े ध्यान से, आपको सेम होमवर्क रिपीट करना है कल वाला, फिर कल मैं आपको कॉल करूंगा। सेम होमवर्क क्या रिपीट करना है, आप स्टोरी पढ़ेंगे गूगल पे जाके और इस स्टोरी को अपने वर्ड्स में सम अप करेंगे। ये पीडीएफ में अपलोड, ठीक है शायद हो ही चुकी है, पीडीएफ पे अपलोड, चेक कर दीजिएगा, सुबह बोला था मैंने, शायद अब तक आपके पास अपलोड हो चुकी होगी, नहीं होगी तो भी हो जाएगी। आप इस पीडीएफ को भी स्टडी करेंगे, ठीक है स्टडी कर लीजिएगा। और इसको स्टडी करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये तो मैंने स्टडी कराई दी, इसको स्टडी करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप गूगल पे जाकर स्टोरी पढ़िएगा और इसे अपने वर्ड्स में बताने की कोशिश कीजिएगा, वो दी बेस्ट आइडिया। कल उसी हफ्ते में टेस्ट, ठीक है बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।